इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीजी कॉलेज हिरणमगरी सेक्टर 4 उदयपुर, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल हिरणमगरी सेक्टर 4 उदयपुर, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल शास्त्री सर्कल उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे अलर्ट भारत न्यूज। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। लिफ्ट मांगकर वर्ल्ड टूर पर निकले लुकास पहुंचे लेक सिटी। सफर के दौरान जासूसी के शक में जेल में बिता चुके हैं रात। छोटे कपड़े पहने तो शहर के इन प्रसिद्ध मंदिरों में नहीं मिलेगा प्रवेश। बीएससी थर्ड ईयर के रिजल्ट में कई छात्र हुए फेल। रिजल्ट संशोधित करने की मांग को लेकर स्टूडेंट्स ने किया जंगी प्रदर्शन। कारवाड़ी के घर में मिला चंदन का जखीरा। डीएसटी और धान मंडी पुलिस ने दबिश देकर 110 किलो अवैध चंदन की लकड़ियां की जब्त। नगर परिषद सभापति और आयुक्त में तनातनी। सभापति ने आयुक्त पर लगाया काम नहीं करने का आरोप। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। लिफ्ट लेकर वर्ल्ड टूर कर रहा न्यूजीलैंड का लुकास मंगलवार को उदयपुर पहुंचा। इस दौरान लुकास ने अपने सफर के किस्से साझा किए। दरअसल लिफ्ट लेकर दुनिया की यात्रा पर निकले न्यूजीलैंड के लुकास मंगलवार को उदयपुर पहुंचे। लुकास 5 महीने पूर्व फरवरी से अपनी यात्रा पर निकले हुए हैं और 16,000 किलोमीटर की यात्रा और 14 देश घूमने के बाद भारत पहुंचे हैं। इस दौरान लुकास पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों की यात्रा करेंगे। लुकास ने बताया कि अपनी यात्रा के दौरान उन्हें लोगों का काफी प्यार और सहयोग मिला है। यात्रा के दौरान अपने साथ हुए किस्से साझा करते हुए लुकास ने बताया कि जब वे अजरबैजान में थे तब आर्मी ने उन्हें शक के चलते पकड़ लिया था। वे लुकास को जासूस समझ रहे थे और इसी के चलते उन्हें एक दिन जेल में भी रहना पड़ा था। साथ ही अपनी यात्रा का सबसे यादगार किस्सा सुनाते हुए लुकास ने बताया कि 2 हफ्ते पहले वे धर्मशाला में दलाई लामा से मिले थे। उनसे मिलना उनके लिए सबसे यादगार पल था। We just want to know that what is all about your journey and how many kilometers have you traveled so far? Okay, hello everybody, namaste. My name is Lucas Venner and I am traveling from France to New Zealand just by lift, by hitchhiking. After 5 months of adventure and 16,000 kilometers of lift, I arrive here in Udaipur. It's now 1 month that I am in India. I visited 5 different states, Punjab, Haryana, now I am in Rajasthan. I like this adventure, and what is nice with hitchhiking that I am always with local people that are explaining me about their life, about their culture, their tradition, and yeah, that's what I like. And in which month you started your journey? I started as February, 4th of February. And what is the inspiration behind the journey and what inspired you? I've done a travel of hitchhiking before, but it was only in Europe, and now that I graduated, I say, oh yeah, it could be nice to do next a bit more. Can you please tell me your experience of your journey with people coming around all these states of India, and since you started your journey, which type of people have you met? I met 300 drivers who helped me. Some people they helped me for 500 meters, others for 500 kilometers, and they are always helping me. So that's very good. Why you decided to go and continue your journey by taking lift from the people? It was to learn about the people, because if you are a tourist, you can go in India, take bus, sleep in hotel, but you are not discussing and exchanging with local people. For me, that's why it's important to do lift, to be always with local people. So from your house only you started your journey? Lift. I didn't take a single bus, train, plane, just by lift. By lift, by road? Yeah, by road. Okay. And do you want to share any experience of anything happened with you during this journey? Anything worse happened? When I was in Azerbaijan, they took me for a spy. Okay. So I was arrested by the army, and I spent 1 day in jail because they say, oh yes, they were with Kalashnikov. Okay. They say, oh yeah, you are a spy, and then I show my passport. How you managed to? I explained that everything was in order. I show my passport, that I was just traveling. So I show them my map of the world with my tracking, and explaining on my Instagram account that I was not a spy but just a traveler. So how you managing while crossing the borders? Are you having visas and all? Yeah, I need to apply for visa in every country.
So in India, I applied for 1 year visa in order to have time and to visit north, east, south, west of India. And while coming to India, from which country you entered India? I entered from Pakistan, but only transit because Pakistan they didn't give me a visa, tourist visa. Okay. So I spent only 24 hours crossing Pakistan Okay, only. And how you managed means 24 hours? because it was transit visa, so I was not allowed to visit. Most interesting means memory do you want to share? 2 weeks ago, I met the Dalai Lama when I was in Dharamshala. So it was a really nice experience. He Okay, blessed- you met him. Yeah, he blessed my travel. I can show you the picture after. Okay. And he blessed my travel, and it was really nice to meet him, and such a life-changing experience, I would say. Tell me something about your family and your background. My parents are supporting me in this travel. I have 2 brothers living in France, my 2 parents. And they are really happy for me. Say that it's a really good experience. What I am doing, I'm learning so many things. I am really changing, I think, every day. How So- do you manage to get food and where you're staying while you're staying? Most in of the hotels? time I stay at people's house. So the people they invite me, say, oh yeah, do you want to come to stay at my house? Sometimes I sleep in a tent. So I try to reduce the cost. That's also what I would Exactly, I like to know show. that. That's why I'm asking this. So because my challenge to say is that we can go to the other end of the world without big budget. So are you going to complete the entire journey of the globe? I will try, yeah. That's my challenge. How many countries you have done? I've done 14 countries. for the 14 moment. countries already completed. Complete, yeah. Okay, and now from India? I will go to the south of India. So I think after I will go to Mumbai, Nagpur, Bangalore, and then I will go to Sri Lanka. Okay, thank you. उदयपुर के 2 प्रसिद्ध मंदिरों में अमर्यादित कपड़े पहनने वालों को प्रवेश नहीं मिलेगा। इस प्रतिबंध पर अलर्ट भारत न्यूज ने विभिन्न धार्मिक संगठन के प्रतिनिधियों से बात कर उनके विचार जाने। उदयपुर के 2 प्रसिद्ध मंदिरों में अमर्यादित कपड़े पहनने वालों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस प्रतिबंध पर अलर्ट भारत न्यूज ने विभिन्न धार्मिक संगठन के प्रतिनिधियों से बात कर उनके विचार जाने। भारत अपने समाज, संस्कृति, सभ्यता और धर्म के लिए जाना जाता है। भारत की जड़ें धर्म और शास्त्रों से जुड़ी है। यहाँ सभी धर्मों को समान भाव से देखा जाता है और सभी धार्मिक स्थलों का सम्मान किया जाता है। इन्हीं धार्मिक स्थलों के अपने कुछ नियम हैं और कुछ मान्यताएं हैं। मौजूदा समय में हिंदू मंदिरों में अमर्यादित कपड़ों की वजह से चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। दरअसल सोशल मीडिया पर रील्स और खबरों में आजकल मंदिरों में कपड़ों को लेकर काफी कुछ चल रहा है। ऐसे में अब उदयपुर के प्रसिद्ध बोहरा गणेश जी मंदिर और जगदीश मंदिर में भी नोटिस चस्पा कर दिया गया है। इसमें नियम कायदे बना दिए गए हैं, उन्हीं के अनुसार मंदिर में प्रवेश मिलेगा। मंदिर प्रबंधन ने एक नोटिस चस्पा किया है जिसमें लिखा है कि सभी भक्तों को सूचित किया जाता है कि मंदिर परिसर में शॉर्ट टी-शर्ट, शॉर्ट जीन्स, बरमूडा, मिनी स्कर्ट, नाइट सूट आदि पर प्रतिबंध लगाया गया है। कृपया इस नियम का विशेष ध्यान रखें क्योंकि ऐसा करने पर आपको मंदिर में प्रवेश नहीं मिलेगा। इस नोटिस के चस्पा होने के बाद चर्चाएं होने लगी है। वहीं उदयपुर में सनातन संस्कृति और धार्मिक संगठन से जुड़े लोगों ने क्या कुछ प्रतिक्रिया दी, आप भी सुनिए। जिस तरह से हमारे हिंदू मंदिरों में जो निर्णय लिया गया कि हमारे संस्कृति के अंदर बच्चियां कम कपड़े पहन करके मंदिर के अंदर नहीं आए, और वास्तव में देखिए हमारा इसके पीछे बहुत बड़ा तर्क है क्योंकि विधर्मी लोग आजकल हमारे हिंदू मंदिरों की तरफ जिस तरह से लच्छे वगैरह पहन करके हाथों में और जिस तरह से तिलक लगाकर जब मंदिरों में आते हैं और हमारे बहन बेटों के वीडियो जब बनाते हैं और फिर उसका जब दुरुपयोग होता है, तो वाकई में आज हमारे हिंदू मंदिरों के अंदर जिस तरह से हमारी संस्कृति को बचाने का जो काम किया जा रहा है, कम कपड़े पहन कर नहीं आए, उन मंदिरों का मैं साधुवाद और धन्यवाद अर्पित करता हूँ। वर्तमान में हमें ज्ञात हुआ है कि उदयपुर के 2 प्रसिद्ध मंदिर जगदीश चौक और बोहरा गणेश जी मंदिर पर मंदिर प्रशासन द्वारा ये नोटिस लगाए गए हैं कि कोई भी छोटे कपड़ों में, मिनी स्कर्ट में या कम कपड़ों में मंदिर में प्रवेश नहीं करेगा। तो इनके इस तरह के फैसलों का मैं सतीश शर्मा पूरे हृदय से स्वागत करता हूं। आप मंदिर प्रशासन ने जो इस तरह के निर्णय लिए हैं वो बिल्कुल सराहनीय है और उचित है बिल्कुल, और इसकी आवश्यकता थी आज के समय में, क्योंकि देखते जा रहे हैं हम धीरे धीरे कि आज का जो यूथ है वो अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पे, रहने की आज़ादी के नाम पे, इन सब के नाम पे कुछ ज़्यादा ही खुलता जा रहा है। संस्कृति
सभ्यता लोग भूलते जा रहे हैं। और स्पेशली आज की यूथ के लिए मैं बात करूंगा, जो कि केवल इस बात पे कि क्या हमारी इतनी स्वतंत्रता नहीं है, कि हम ऐसे कपड़े नहीं पहन सकते, कि हम ऐसे बाहर इस तरह से बाहर नहीं जा सकते। तो ये जो चीज़ आजकल हो रही है और ये जो बढ़ती जा रही है, जो नए बच्चे जो बढ़ते जा रहे हैं इसके मामले, और माता पिता का भी उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई कंट्रोल नहीं है बच्चों पे। तो कम से कम ऐसी जो जगह है जो अपनी सनातन से जुड़ी हुई है, संस्कृति से जुड़ी हुई है, जो हमारी आस्था से और हमारे धर्म से जुड़ी हुई चीज़ है, ऐसे स्थान है जैसे मंदिर हो गए, इस तरह के कोई और जगह हो गई, तो इस पे कम से कम ऐसे बिल्कुल फैसले लगाने चाहिए। किसी भी प्रकार के मिनी स्कर्ट, कम कपड़े, और यहाँ तक मैं कहूँगा कि इन मंदिरों में या इन स्थानों पर जाके ये जो प्री शूट का और ये जो चल रहा है वो भी इनको बंद करवाना चाहिए। साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा आपको, जिस तरह से हम स्कूल जाते थे या अभी बच्चे स्कूल जाते हैं, तो उनकी एक गणवेश होती है एक जैसी। हम कहीं जैसे हम कहीं शादी में गए, कहीं ब्याह में गए, तो कोई मांगलिक कार्यक्रम में गए, तो वहाँ पर भी एक प्रॉपर एक गणवेश हमारे पास में। तो जो हमारा हिंदुओं का सबसे बड़ा स्थान है, ऐसा आस्था का केंद्र है, वहाँ पर हम मिनी स्कर्ट पहन के वहाँ पर हम घूम रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं, वहाँ पर हम सेल्फी ले रहे हैं, वहाँ पर हम प्री वेडिंग शूट कर रहे हैं। तो ये चीज़ें बिल्कुल गलत है। वहाँ पर भी हमको पूरे जो हमारा गणवेश है, प्रॉपर जो हमारा सनातन संस्कृति का गणवेश है, वो पहन के जाना चाहिए। और अगर वो गणवेश आप नहीं भी पहनते, धोती कुर्ता पजामा आप नहीं पहनते, तो कम से कम ढंग से शर्ट, टी शर्ट, पैंट, साड़ी तो पहने। ये बहुत अच्छा शुभ संकेत है। हमारे संस्कारों में, 16 संस्कारों में खान पान, रहन सहन, इसका सबका प्रभाव पड़ता है। और वही सनातन है जो अब छोटे कपड़े पहन के मंदिरों में प्रवेश करना, या आपके घर के कपड़े हैं आप घर में पहनो, बाजार में ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। तो हमारी गरिमा में, जहाँ पर आप देवता बन करके देवता बनने का दर्शन करोगे तो देवता दर्शन देगा, वरना उसका कोई विशेष लाभ भी मिलने वाला नहीं है। इसीलिए मर्यादाओं को ध्यान रखना चाहिए। और एक बहुत सुंदर प्रयास आपने किया है, इस प्रयास के लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साइंस कॉलेज के छात्रों ने मंगलवार को बीएससी थर्ड ईयर का रिजल्ट संशोधित करने की मांग को लेकर सुखाड़िया विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के बाहर प्रदर्शन किया। छात्र नेता सुरेंद्र नीनामा ने बताया कि विश्वविद्यालय द्वारा सोमवार को बीएससी थर्ड ईयर का परीक्षा परिणाम जारी किया गया था। इसमें अधिकांश विद्यार्थियों को फेल कर दिया गया है एवं अनेक छात्रों के परिणाम में आरएल लगाई गई है। नीनामा ने बताया कि जिन छात्रों के बैक आई थी उन्होंने इस साल वापस पेपर दिया, लेकिन सभी को 0 नंबर दे दिए गए हैं। ऐसे में छात्रों का कहना है कि विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा जो परीक्षा परिणाम जारी किया गया है उससे छात्र असंतुष्ट है और उनमें रोष व्याप्त है। ऐसे में आज विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के बाहर छात्रों ने प्रदर्शन करते हुए परीक्षा नियंत्रक को ज्ञापन सौंपा और परीक्षा परिणाम संशोधित कर पुनः जारी करने की मांग की है। और आज जो कल 3 तारीख को बीएससी थर्ड ईयर का रिजल्ट घोषित हुआ, उसमें बहुत से विद्यार्थियों को सप्लीमेंट्री दे दी गई है, बहुत सारे विद्यार्थियों को अपने आरएल लग गई है। इसी संदर्भ में हम प्रशासन को ज्ञापन देना है और आगामी जो बीएससी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का जो रिजल्ट आने वाला है उसमें भी इन्होंने पूर्ण जांच पड़ताल के साथ रिजल्ट घोषित नहीं करेंगे। इसी संदर्भ में समस्त छात्र शक्ति के साथ में ज्ञापन देना है। प्रशासन 2 घंटे हो गए, अभी तक कोई यूनिवर्सिटी का ना वीसी मौजूद है यहाँ पे, ना फैकल्टी चेयरमैन सीपी जैन साहब मौजूद है यहाँ पे, और ना ही रजिस्ट्रार साहब मौजूद है। इसी कड़ी में मैं विश्वविद्यालय को निवेदन करता हूँ कि सर जल्दी से जल्दी गेट खुलवा के हमारी मांग सुनी जाए, और अगर ये चीज नहीं होती है तो मैं अर्धनग्न प्रदर्शन करूंगा, और जब तक रिजल्ट रिवाइज होता है तब तक मैं वापस यहीं पे अर्धनग्न प्रदर्शन करूंगा। धन्यवाद। कल बीएससी थर्ड ईयर का रिजल्ट जारी किया था, जिसके अंदर अधिकतर छात्रों को फेल कर दिया गया है, छात्र छात्राओं को फेल कर दिया गया है। जिस बच्चे ने पिछले ईयर का एग्जाम दिया था, बैक थी, उसने अगर 10 पेज भरने के बाद भी उसके 0 नंबर आते, 0, तो ये काफ़ी सोचने वाली बात है। हम सब आज छात्र शक्ति यहाँ पर खड़े हैं, सबकी यही मांग है। किसी के 0 नंबर दिए हैं 10 पेज भरने के बावजूद, तो ये बहुत सोचने वाली बात है। हमें ऐसा लगता है कि प्रशासन को पैसों की ज़रूरत होती है तो छात्रों को फेल कर दिया जाता है, तो ये काफ़ी गलत है। जो गरीब मजदूर का बेटा यहाँ पे इतनी फीस देने के बाद यहाँ आ रहा है और यहाँ पे आने के बाद इतनी मेहनत करने के बाद अगर उसको फेल कर दिया जाता है, काम करने के बाद भी फेल कर दिया जाता है किसी भी कारण से, हमें तो लगता है कि पैसों के कारण से करते, तो ये काफ़ी गलत है। हम सब यहाँ पे विरोध कर रहे हैं, और जब भी हम विरोध करने आते हैं, हम हमारी बात रखने आते हैं, तो ये चैनल गेट बंद कर दिया जाता है। जैसे हम आतंकवादी हो, जैसे हमारे पास चाकू छुरी या बंदूक जैसे कोई वेपन हो। हम प्रशासन को और सरकार को सबको बताना चाहते हैं कि हम कलम लेके आते हैं, हम पेन लेके आते हैं, हम यहाँ कोई वायलेंस करने नहीं आ रहे, कोई हिंसा करने नहीं आ रहे। तो हम छात्र हैं, ये यूनिवर्सिटी हम सब की है, प्रशासन जो अंदर बैठा है वो भी हमारा है, वीसी हमारा है, रजिस्ट्रार हमारा है, और यहाँ के हर टीचर हमारे हैं, प्रोफेसर हमारे हैं। तो हमें एक छात्रा जैसा हमारे साथ बर्ताव नहीं होता है,
हम छोटी सी भी हमारी बात रखने जाते हैं तो हमारे साथ बहुत ही गलत व्यवहार किया जाता है। सही बात है कि नहीं सही बात है? सही बोल रहा हूँ। श्रीनाथ जी मंदिर के पास हुए हादसे के मृतकों के परिजनों का मुआवजा बढ़ाने की मांग को लेकर मंगलवार को क्षेत्रवासियों ने एडीएम सिटी को ज्ञापन सौंपा। दरअसल कुछ दिनों पूर्व उदयपुर शहर के अंदरूनी क्षेत्र श्रीनाथ जी मंदिर में बारिश की वजह से जर्जर मकान गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई थी। इसको लेकर जिला कलेक्टर ने मृतकों के परिवार को 1 लाख मुआवजा देने की घोषणा की थी। जिला प्रशासन द्वारा दी गई मुआवजा राशि को बढ़ाने को लेकर मंगलवार को भाजपा राहत आपदा विभाग के प्रदेश संयोजक डॉक्टर जिनेंद्र शास्त्री, क्षेत्रीय पार्षद शिल्पा पामेचा के नेतृत्व में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर प्रभा गौतम को ज्ञापन दिया और मुआवजा राशि बढ़ाने की मांग की। साथ ही उन्होंने उदयपुर शहर के भीतरी क्षेत्र में जर्जर हो रहे मकानों को चिन्हित कर हटाने की भी अपील की है। ज्ञापन देने के दौरान भाजपा राहत आपदा विभाग के प्रदेश संयोजक डॉक्टर जिनेंद्र शास्त्री, नगर निगम के पार्षद ताराचंद जैन, शिल्पा पामेचा, गोपाल जोशी, पूर्व पार्षद लवदेव बागड़ी, विजय आहूजा, सुनील व्यास, इरशाद चेनवाला, जयेश चंपावत, राजेश अग्रवाल आदि मौजूद रहे। और मेरे मदर और मेरे ब्रदर दोनों एक्सपायर हुए इस कैलेमिटी में, तो सभी का सहयोग काफ़ी है और शिल्पा मैम एंड जिनेंद्र भैया दोनों ने काफ़ी मदद करी है हमारी, और मंदिर के सभी लोग, काफ़ी लोगों ने हमें मदद करी है। तो मैं बस सबका धन्यवाद करती हूँ, लेकिन भविष्य में ऐसी कोई दुर्घटना ना हो, इस चीज़ के लिए हम सबको अवेयर रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्रशासन तो सहयोग दे रहा है, लेकिन हमें भी एक सिटीज़न के नाते हमें कई चीज़ों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। तो मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि आप इस तरह का कोई भी रिस्क मत लीजिए। वार्ड 53 में जो भी जर्जर मकान है उनके मालिकों को पूर्व में भी नोटिस दिया चुके हैं, और ये जो अभी घटना हुई है श्रीनाथ जी के मंदिर में, उसके बाद वहाँ पे नगर निगम की टीम ने आके रेड क्रॉस लगा दिया है, और 1-2 मकान तो खुद मालिक आ गए, उन्होंने अपने स्तर पर हटाने की तैयारी कर ली है, और जिन्होंने दूसरों ने नहीं की है उनको नोटिस जारी कर दिए गए और पूर्व में भी किया जा चुके हैं। पर वो ज़्यादातर वही मकान है जहाँ पे आपसी विवाद चल रहा है। जैसे 4 भाइयों का मकान है तो दूसरा तैयार नहीं है, पहला तैयार नहीं, उस चक्कर में रुके हुए। ये जो हादसा हुआ था बहुत ही दुखद था, और सबसे बड़ी बात थी कि ये मकान ऐसा नहीं था कि आज ही गिर जाएगा। इससे भी जर्जर अवस्था में वहाँ कई मकान हैं जिनको हमने चिन्हित करके उन पे कार्रवाई करने का भी दिया है। आप कह रहे थे अभी कि नगर निगम कुछ नहीं कर रहा है, नगर निगम कर रहा है, लेकिन उसका अपना प्रोसेस होता है, अपनी कार्रवाई होती है। उसने 2 से 3 बार नोटिस दिए, उसमें प्रशासन का सहयोग भी हमको चाहिए होता है कि प्रशासन भी वहाँ पर पाबंद करे लोगों को कि वो मकान खाली करे, क्योंकि बरसों से लोग वहाँ पर रह रहे हैं। और हम तो कहते हैं कि उदयपुर में एक नवाचार करना चाहिए कि जिसमें प्रशासन को 50 साल से ऊपर मकानों पर सर्टिफिकेट जारी करवाना चाहिए। जब उस सर्टिफिकेट जारी होता है तो अपने आप एनालिसिस हो जाता है कि वो मकान रहने लायक है या नहीं है। जब जनता ऐसी जागरूक हो जाएगी, प्रशासन जागरूक हो जाएगी, तो इस तरह से हादसे मुझे लगता है कि नहीं हो पाएंगे। देखिए, श्रीनाथ जी के मार्ग में जो श्रीनाथ जी का मंदिर बना हुआ है, 26 मई को एक बहुत दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें एक मकान भर आकर गिर गया। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रही है कि हमारे पास ये सूचना थी कि 1 लाख रुपए प्रशासन ने जारी किए हैं और इसके आदेश भी दिए हैं। आज हमने जब ज्ञापन दिया तो मैडम ने इस बात को कहा कि बिल्कुल इसकी राशि हम बढ़ा रहे हैं, और 4 लाख रुपए तक की इसकी राशि बढ़ाने तक का हमने मानस बनाया है। मैं प्रशासन से बहुत हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि शहर में जहां जहां जर्जर बिल्डिंगें, आप उसको गिरने का इंतजार नहीं करें। हम मुआवजा राशि की बात नहीं करना है, हम तो चाहते हैं कि जनता को जो सुरक्षा मिलनी चाहिए उस सुरक्षा को देने का जिम्मा प्रशासन का है। और आदरणीय एडीएम मैडम ने जो हमको कहा कि हम उसको राशि जारी करेंगे, हमारा यही कहना है कि परिवारजन में एकमात्र पिता रह गया है, और पिता के बाद में कोई भी पीछे बचा हुआ नहीं है, ना उस व्यक्ति का रहने की व्यवस्था है, ना उसके खाने की व्यवस्था है। आखिर वो व्यक्ति किसके भरोसे रहे? जो एकमात्र बच्चा था उसकी भी मृत्यु हो गई, जो आपने देखा कि अस्पताल की लापरवाही से उसकी मृत्यु हुई है। मेरा ये कहना है, हमने आज सबने यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने ज्ञापन दिया, एक मांग की है कि उसको 5 लाख रुपए का अधिकतम मुआवजा राशि जारी की जाए, और साथ ही जो अनन्या नाम की बच्ची है जिसके लिए प्रशासन ने कहा कि उसका चिरंजीवी में नाम नहीं है, उसको भी प्रशासन मुआवजा राशि जारी करे। और निश्चित ही हमको पूरा विश्वास है कलेक्टर साहब पे, वो इस प्रकार के आपदा में बहुत बड़ा मन करके जनता की मदद करते हैं, और ये उनका जो विश्वास है जनता के प्रति वो बनाए रखें। अन्यथा अगर इसको नहीं किया गया तो बहुत बड़ा आंदोलन हम इसको करेंगे, क्योंकि ये उदयपुर की हित का ही नहीं, किसी परिवार के जीवन मरण का सवाल है, ऐसा मेरा। अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। The Scholars Arena
an English medium co-education senior secondary school, activity-based teaching and learning with 1:35 student-teachers ratio. Pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE. Well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab. Well-equipped and ventilated classrooms. School aims to cultivate traditional values and cultural heritage of India. Up to 2nd standard, no school bags, no homework. Air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms. Special general knowledge empowerment program. Enabling child to speak fluent English. Ensure the best English speaking environment. Complete monitoring with CCTV. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School near IOC Petrol Pump, Savina Bypass, Sector 9, Hiranmagri, Udaipur. Our second branch, the Scholars Arena English Medium School, 29 New Swaminagar, 100 Feet Road, Tekri Madari Link Road, Udaipur. ज्ञान ज्योति प्रेरणा निशुल्क क्लासेस। जी हाँ, आपके उदयपुर में प्रतियोगी परीक्षा की निशुल्क कोचिंग, BSTC और CET की निशुल्क कोचिंग, लिमिटेड सीट्स। आज ही रजिस्ट्रेशन करवाएं। संपर्क 9001512227 और 9982340210, 9799423599। तो आज ही आए राजदेव BH कॉलेज, बाल शिक्षा सदन, राता खेत, रामपुरा चौराहे के पहले, उदयपुर। अगर आप डूंगरपुर में मकान बनाने का सोच रहे हैं तो एक बार टाइगर हिल कॉलोनी जरूर आएं। यहाँ आपको मिलेगा 3 BHK मकान सर्व सुविधा युक्त, अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ, कम बजट में आवासीय कॉलोनी के मध्य। जी हाँ, राज मंदिर प्रॉपर्टी डूंगरपुर वासियों के लिए लाया है 2000 वर्ग फीट निर्मित क्षेत्र के 3 BHK मकान, जो कि 2 मंजिल मकान है, जिसमें आपको मिलेगा सेपरेट बोरिंग, पार्किंग व गार्डन, सेप्टिक टैंक, पानी की टंकी, मॉड्यूलर किचन, बालकनी, AC, टीवी व इन्वर्टर व वॉशिंग मशीन पॉइंट व गीजर कनेक्शन इत्यादि सभी सुविधाओं के साथ। देश के सभी प्रमुख बैंकों द्वारा अब आसान एवं छोटे किश्तों में कम ब्याज दर पर लोन सुविधा उपलब्ध है। तो अब इंतजार किस बात का, आज ही बुक कराएं टाइगर हिल कॉलोनी में अपने सपनों का मकान। डूंगरपुर में अपने 3 BHK मकान के लिए संपर्क करें राज मंदिर प्रॉपर्टी। मोबाइल नंबर 9549929912, 7992352848। Smaller step, big dreams. Let them true with Harshi Gautam Academy. Admission open 2023-2024. English medium, nursery to 10th. Special features, learning without stress. A strong base of education. Parents meet on second Saturday of every month. Home environment for young child. Spacious and well-equipped classrooms. Indoor-outdoor game. School van facility. Available experienced teacher. Homely environment. Computer classes. CC camera in all classes. Smaller step, big dreams. Let them true with Harshi Gautam Academy. Anand Vihar, New Mali Colony, Tekri, Udaipur. Contact number 9887902371 or 9887812371. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डबोक के पास एक ऊंट को अज्ञात वाहन ने चपेट में ले लिया, जिस पर एनिमल रेस्क्यू टीम ने ऊंट को चेटक सर्कल स्थित पशु चिकित्सालय में भर्ती करवाया। एनिमल रेस्क्यू टीम की डॉक्टर माला मट्ठा ने बताया कि डबोक के पास एक ऊंट को किसी अज्ञात वाहन ने चपेट में ले लिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर रेस्क्यू टीम तुरंत मौके पर पहुंची और घायल ऊंट को इलाज के लिए चेटक स्थित पशु चिकित्सालय में भर्ती करवाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं पशु चिकित्सालय के उप निदेशक शरद ने बताया कि ऊंट बहुत कमजोर है, जिसको किसी वाहन ने टक्कर मार दी थी, जिस पर लावारिस अवस्था में इसे कोई छोड़कर चला गया था। अंदरूनी चोटों के चलते फिलहाल ऊंट की हालत गंभीर बनी हुई है। ये जो ऊँट है, इसके सीधे टांग में रेडिस अंदर का फ्रैक्चर है और ये ऊँट माला मट्ठा मैडम द्वारा देवाली जिंक स्मेल्टर के आगे से लावारिस हालत में पड़ा हुआ था, वहाँ से लाया गया है
और ये ऊँट है भी बहुत कमज़ोर है, पूरे शरीर के ऊपर पूरे स्किन की इन्फेक्शन भी हो रहा है और लेफ्ट आई भी इसकी और पूरी ख़राब हो चुकी है। तो इसको कोई लावारिस अवस्था में वहाँ छोड़ गया था, हो सकता है किसी व्हीकल से इसका एक्सीडेंट हो गया हो, उसके बाद इसकी ये टांग टूट गई है। तो मैडम द्वारा यहाँ अस्पताल में लाया गया है, पर इसकी हालत अभी बहुत ज़्यादा सीरियस है। फिर भी अपन जो भी इलाज पॉसिबल है, क्योंकि टांग टूटने पर बड़े जानवर में न तो हम एम्पूट कर पाएंगे, न हम इसको प्लास्टर बांधने के बाद भी खड़ा नहीं हो पाएगा। अतः इसको एक बार ड्रेसिंग करके देख रहे हैं हम कैसे इसका इलाज आगे कर रहे हैं, और जनरल कंडीशन सुधारने के लिए इसको ताकत की दवाएं हैं वो ये दी जा रही है। तो जो भी बेस्ट पॉसिबल हो रहा है वो हमारे यहाँ कर रहे हैं। पर क्योंकि एक्सीडेंटल इंजरी है, अंदरूनी चोटें भी हैं इसको दूसरी, तो इसकी वजह से अभी इसकी हालत सीरियस ही बनी हुई है। अभी हम 3 दिन पहले संडे को एक रेस्क्यू करके लाए हैं जो राजकीय पशु ऊँट का। हमारे पास जिंक्स मिलिटर डबोक से इन्फॉर्मेशन आई थी कि वहाँ पर एक ऊँटनी का एक्सीडेंट हो गया है। तो मेरी टीम में से अभिचल और गौरव वहाँ पर गए थे और हमने ट्रक और क्रेन कराया, क्रेन से उठाकर इसे बहुउद्देशीय राजकीय पशु चिकित्सालय में एडमिट कराया। जैसा आप देख सकते हैं कि 3 दिन से इसका यहाँ पर ट्रीटमेंट चल रहा है और इसकी स्थिति काफ़ी गंभीर है। इसको रेडियस अल्ना का कंपाउंड फ्रैक्चर हो चुका है। डॉक्टर से हमारी रेगुलर बातचीत चल रही है इस बारे में और रेगुलर इसका ट्रीटमेंट अपडेट हम आपको देते रहेंगे। थैंक यू। बकाया पेमेंट दिलवाने की मांग को लेकर नरेगा कर्मियों ने मंगलवार को जिला परिषद सीईओ को ज्ञापन सौंपा। दरअसल ज्ञापन देने आए नरेगा कर्मियों ने बताया कि मावली पंचायत समिति के मैट का पेमेंट पिछले 1 वर्ष से बकाया चल रहा है, जिससे नरेगा कर्मियों को काफी परेशानी हो रही है। नरेगा कर्मियों का कहना है कि समय पर वेतन नहीं मिलने के चलते मैटों का घर चलाना भी मुश्किल हो रहा है। इसलिए आज सभी इकट्ठा होकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर मेटों का पेमेंट जल्द से जल्द करवाने की मांग की। हम ये मावली के सब मेट लोग यहाँ मुख्य कार्यकारी अधिकारी जी से वो हमारे 12 महीने से मेटों का पेमेंट नहीं आ रहा है। महात्मा गांधी नरेगा रोजगार योजना के मेट है, हम 12 महीनों से हमारा पेमेंट नहीं आ रहा है। अभी हम आज उदयपुर आए और कार्यकारी अधिकारी साहब से मिले हैं, उन्होंने अभी आश्वासन दिया है। अभी हम यहाँ जिनसे मिलने वो सब आश्वासन दे रहे हैं और मेट लोग सब परेशान हैं। 12 महीने से पेमेंट नहीं आ रहा है और हमारी हालत खराब है, घटता है। कृपा करके हमारे मेटों का पेमेंट दिलाया जाए। मंगलवार को तस्करी की सूचना पर डीएसटी और धान मंडी पुलिस ने कारवाड़ी में दबिश देते हुए 110 किलो अवैध चंदन की लकड़ियां जब्त की। दरअसल उदयपुर जिला पुलिस अधीक्षक भुवन भूषण यादव द्वारा चंदन की अवैध तस्करी की रोकथाम के लिए जिले में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत एएसपी सिटी मंजित सिंह के सुपरविजन में धान मंडी थाना अधिकारी और डीएसटी प्रभारी दिलीप सिंह के नेतृत्व में गठित टीम ने मंगलवार को चंदन तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। टीम ने मुखबिर की सूचना और तकनीकी मदद के आधार पर मंगलवार को शहर के धान मंडी थाना क्षेत्र के कारवाड़ी इलाके के एक घर में कार्रवाई करते हुए तस्करी के लिए रखी 110 किलो चंदन की लकड़ियां और 11 किलो बुरादा जब्त किया। हालांकि कार्रवाई की भनक लगते ही आरोपी मौके से भाग निकले। जानकारी के अनुसार कारवाड़ी निवासी दिलावर खान और अकरम खान के घर में तस्करी के लिए अवैध रूप से चंदन की लकड़ियां रखी हुई थी। टीम ने लकड़ियों को जब्त कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। इस कार्रवाई में एएसआई बिहारी लाल, कांस्टेबल कैलाश, हेमेंद्र, मोहित, अल्पना, हेड कांस्टेबल धर्मवीर, विक्रम सिंह, सुखदेव सिंह, मनमोहन सिंह, कांस्टेबल प्रहलाद, उपेंद्र, रामनिवास, रविंद्र, करतार, अनिल, डालचंद, फिरोज आदि की अहम भूमिका रही। आज मैं थाना प्रभारी के रूप में धान मंडी में तैनात हूँ। आज मुझे जरिए टेलीफोन मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि कारवाड़ी मस्जिद के पीछे दिलावर खां जो आपका एचएस है उसके घर में भारी मात्रा में चंदन भरा हुआ है। सूचना मुखबिर की विश्वसनीय होने से मैं थाने से मैं जाब्ते के कारवाड़ी पहुंचा, जहां डीएसटी टीम श्री विक्रम सिंह की सहायता से, उनके साथ जवान मौजूदों की सहायता से मैं महिला कांस्टेबलों के उनके मकान पर पहुंचे। श्रीमान सीओ साहब को टेलीफोन से अवगत कराया है और माल खुर्द-बुर्द होने की पूर्ण संभावना होने की वजह से उच्चाधिकारी को सूचित करके मौके पर मकान की तलाशी ली, जहां 110 किलो चंदन के गट्टे छीले हुए जो पृथक कट्टे में मिले गए और 3 कट्टे में बुरादा मिला है 13.5 किलो, जिसको नियमानुसार मौके से इलेक्ट्रॉनिक कांटे से तुलवाकर कट्टों पर मार्क किया गया और सभी को मौके से नंबरिंग करके थाने पर लाया।
किसी को गिरफ्तार भी किया है कोई और? एक बालक मौके पे मिला है ओवैस नाम का, जिसका नाम पता पूछा, उसने उसका नाम ओवैस पिता दिलावर खां बताया और पुलिस और सिविल जाब्ते को देखकर उसके पिताजी दिलावर और उसके अंकल क्या नाम था उसका, अकरम, जो पुलिस जाब्ते को देखकर मौके से भाग गए। ये बालक था जिसको मौके पे डिटेन किया। बालक को कागजात के बारे में पूछा तो उसने बताया कि ये माल मेरे पिताजी का है, मेरे पिताजी लाते हैं, मैं उनकी मदद करता हूँ। और इसने मौके पर ये फॉरेस्ट एक्ट की कार्रवाई नियमानुसार पारी गई। किसी तरह का कोई कागजात उनके पास नहीं मिले। मौके से नियमानुसार कार्रवाई करके थाने पर लेकर आया। उच्च अधिकारी को निवेदन किया, विशेष कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कितने समय से कर रहे हैं काम, कुछ आइडिया आपको? ये मुझे तो भी कोई आइडिया है नहीं है कितने समय, तो वो तो तफ्तीश से मामला क्लियर होगा। अभी जैसी सूचना मिली वैसी मौके की कार्रवाई की है। ठीक है सर। स्वच्छता और सुंदरता में विश्व में अपनी छाप छोड़ने वाले डूंगरपुर नगर परिषद का भाजपा का बोर्ड इन दिनों सुर्खियों में है, लेकिन इस बार स्वच्छता को लेकर नहीं बल्कि नगर परिषद सभापति और आयुक्त के बीच चल रही तनातनी को लेकर। मंगलवार को नगर परिषद के सभापति अमृत कलासुआ, उप सभापति सुदर्शन जैन सहित भाजपा के कई पार्षदों ने नगर परिषद के आयुक्त दुर्गेश रावल के खिलाफ कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। नगर परिषद सभापति अमृत कलासुआ ने बताया कि आयुक्त रावल ने जब से आयुक्त पद ग्रहण किया है तब से लेकर नगर परिषद का कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। आयुक्त ने नगर परिषद बोर्ड की पूर्णतः अवहेलना कर रखी है। उन्होंने बताया कि हर 3 माह में बोर्ड की बैठक आहूत करना आवश्यक है। इसको लेकर कई बार मौखिक और लिखित में देने के बावजूद अभी तक बैठक नहीं की गई है और न ही कोई जवाब दिया गया है। लंबे समय से एक स्थान पर कार्य करने वाले कुछ कर्मचारियों का कार्यचौखा बदलने के लिए भी कहा गया, लेकिन आज दिन तक इस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सभापति ने कहा कि आयुक्त रावल के द्वारा जानबूझकर भूमि नीलामी भी रोकी जा रही है, जिससे नगर परिषद पर आर्थिक भार बढ़ रहा है। सभापति ने कहा कि बुधवार से आयुक्त के विरुद्ध काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। किया जाएगा और उसमें हम भारतीय जनता पार्टी को इन्वॉल्व करेंगे और राज्य स्तर पर उठाएंगे कि आखिर एक अधिकारी ने किस प्रकार से हठधर्मिता से एक बोर्ड को बदनाम करने का प्रयास किया है। निर्माण स्वीकृति के लिए बोल रहे हैं, ऑनलाइन आती है ना, तो बोर्ड को कोई अवगत कराया जाता है। अवैध निर्माण हो रहे हैं तो कह के अब जब हम जाने पूछते हैं तो बताते हैं कि हमने ले ली ऑनलाइन। अब किसने दी, क्या दी, ना तो कोई इसके बारे में कोई पता है और सब कुछ अपने मनमर्जी से चल रहा है। कैसे ये आए हैं तब से नगर परिषद में कोई काम नहीं हो रहा है। एवन एक रूटीन मीटिंग होती है हर 3 महीने में, बोर्ड बैठक होनी चाहिए, वो मैंने 2 बार पत्र लिखने के बाद आज दिन तक उस बोर्ड बैठक को आयोजित नहीं किया गया। जब भी नीलामियाँ 2000 अब ये क्या कहते हैं फरवरी में इन्होंने नीलामियाँ रोक दी और ये कहा कि एक ऊपर से अधिकारी का फ़ोन है। इसके बाद में आज तक एक भी पैसे की इनकम नगर परिषद में नहीं, ना यहाँ पे किसी का काम होना, ना कोई काम करने के लिए तैयार रहना, बस चुपचाप आ करके अपनी कुर्सी पे बैठ करके वापस चले जाना। बोर्ड को बिल्कुल इग्नोर कर रखा है। थक करके हमारा बोर्ड बदनाम नहीं हो इसलिए हमने जिला कलेक्टर को अवगत कराया है और कल से अगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो निश्चित रूप से हम काली पट्टी बांधेंगे और आज एक नया आंदोलन छेड़ देंगे। ये कोई तरीका नहीं हुआ। हम जनता को क्या जवाब दें? ये हमारा भारतीय जनता पार्टी का 7वां बोर्ड है, इसको बदनाम करने की तरीका इन्होंने निकाल रखा है कि किसी प्रकार का काम नहीं करना और अपने जो जनता है वो दुखी हो जाए और इस बोर्ड के बारे में अनगढ़ बोलने लगे। तो अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। बीडी मोटर्स उदयपुर संभाग का सबसे विशाल मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप, जहां आपको मिलेगी हर कंपनी की कारों की जनरल सर्विस, रिपेयरिंग, जनरल पार्ट्स के साथ डेंटिंग, पेंटिंग, व्हील अलाइनमेंट, बैलेंसिंग, पॉलिशिंग, कलरिंग, वॉशिंग एक ही छत के नीचे। जी हां, चाहे मारुति सुजुकी हो या टाटा, ह्यूंडई, फोर्ड, टोयोटा, बीएमडब्ल्यू या ऑडी, सभी गाड़ियों की सर्विसिंग और रिपेयरिंग का कार्य कुशल कारीगरों द्वारा किया जाता है। आरटीओ, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस क्लेम, कैशलेस सुविधा सभी उपलब्ध है। हमारे यहाँ आप पुरानी या क्षतिग्रस्त कार लाकर उसे कुशल कारीगरों द्वारा मॉडिफाइड भी करा सकते हैं। तो इंतजार किस बात का, आज ही संपर्क करें बीडी मोटर्स, हुंडई शोरूम के सामने, बलीचा मेन रोड, उदयपुर। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9649 066 986।
A1 Senior Secondary School, a legend in school education. Co-education English medium with commerce and science stream. A1 Senior Secondary School is situated in the heart of the city at University Road, Ayad, Udaipur. School aims at all-round development of children. School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes, be able to make sensible choice between right and wrong, self-disciplined, self-confident and assertive human beings to create confident, gracious and morally upright individuals. Best academic result from last 5 years of class 10th and 12th. Limited student in each class. Medical checkup twice in a year. Well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab. Spacious library and reading room. Round-the-clock CCTV surveillance by the management. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. Conveyance facility available in all parts of city. Admission open for nursery to 12th. Admission form available in all working days. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayad, University Road, Udaipur. Contact at 0294 241 3294. आजादी के 75 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। राजस्थान का नंबर 1 अफोर्डेबल हाउसिंग खिताब हासिल करने वाला वैदेही ग्रुप इस अवसर पर नागरिकों के लिए लाया है उपहारों की सौगात। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग लाया है एक महा ऑफर, जिसमें फ्लैट के साथ पाइए 125 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रति माह 20 सालों के लिए फ्री। इसके साथ ही दिवाली से पहले दिवाली ऑफर, जिसमें आप जीत सकते हैं पहला इनाम कार, दूसरा इनाम बुलेट, तीसरा इनाम इलेक्ट्रिक स्कूटी, चौथा इनाम एयर कंडीशनर और 5वां इनाम रेफ्रिजरेटर। तो किस बात का है इंतजार? बुक कीजिए और शिफ्ट कीजिए। अभी साइट विजिट कीजिए न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स, बुआना बाईपास के पास, उदयपुर। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद। आपके शहर डूंगरपुर में बालाजी एजुकेशन कंसल्टेंसी लाया है INC द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से A&M करें। 2 वर्ष की अवधि में कोर्स महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, योग्यता 12वीं पास, केवल महिलाओं के लिए। सुविधाएं उपलब्ध। राजस्थान में सरकारी नौकरी के लिए मान्य अनुभवी ट्यूटर्स के द्वारा अध्यापन, सुसज्जित क्लासरूम, क्लिनिकल प्रैक्टिस, कम्युनिटी विजिट, लैब फैसिलिटी, डिजिटल कंप्यूटर लैब। बालाजी मानव विकास एवं सेवा संस्थान, दोवड़ा, डूंगरपुर द्वारा संचालित बालाजी एजुकेशन कंसल्टेंसी, पंचायत समिति दोवड़ा, जिला डूंगरपुर, राजस्थान। डूंगरपुर पता निकुंज प्लाजा के सामने, डाइट हॉस्पिटल रोड, डूंगरपुर, राजस्थान। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 6377 228686 और 9414105130।